Today our topic of discussion is multivariate analysis in which we find the plane of regression. इससे पहले हमने simple correlation and regression discuss किया था. तो simple correlation and regression two variables के लिए होते हैं. That means when we find correlation and regression between two variables, they are called simple correlation and regression. But in case of more than two variables, we have multivariate analysis in which first we find the plane of regression. तो आज हम plane of regression discuss करेंगे. तो plane of regression हम कैसे find करते हैं. So to find plane of regression, first of all, assume that we have n variables x1, x2 up to xn with cause and effect relationship between them. That means some of the variables are affecting the other. ये जरूरी है कि उनमें cause and effect relationship हो, जैसा कि simple correlation and regression में होता है. तो इसके लिए हम जो notations use करते हैं वो है use notation. सबसे पहले हमको notation set करना पड़ेंगे कि use notation क्या होते हैं. So let's consider a distribution involving three variables x1, x2 and x3. तो यहाँ पर पहले हम थ्री वेरिएबल के लिए यूज नोटेशन देखते हैं क्या होते हैं. उसके बाद हम इसी को जनरलाइज करके एन वेरिएबल पे चले जाएंगे. तो यहाँ पर जो हम फाइंड करते हैं इक्वेशन उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रिग्रेशन. यहाँ पर लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स है. बिकॉज एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड इज कॉल्ड ए प्लेन. दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्लेन ऑफ रिग्रेशन इंस्टेड ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन. नाउ इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर इसको आपको समझना है कि ये प्लेन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन कैसे आई है, तो आप प्लेन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द लाइन ऑफ रिग्रेशन. तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हम कैसे लिखते हैं, dy x x माइनस x बार. इस तरह से हम लिखते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया है. सपोज वी हैव थर्ड वेरिएबल z आल्सो. तो इफ वी वांट टू राइट y as a function of x and z, that means plane of regression of y on x and z, then we have to include one more term dy z z minus z bar. So when we have three variables x y z, then we write the regression equation like this and we call it plane of regression. because यहाँ three variables हैं इसलिए इसको line of regression कहना ठीक नहीं है. बट यहाँ पर इस नोटेशन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. dy x से ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसमें कोई और वेरिएबल भी है, इसलिए हम यहाँ पर dy x डॉट z लिख देते हैं, जिससे ये मालूम पड़ेगा यहाँ y x के अलावा एक और वेरिएबल है z. सिमिलरली यहाँ पर by z लिखा है तो इसको by z डॉट x भी लिख देते हैं, जिससे हमको ये मालूम पड़े कि इसमें एक वेरिएबल और है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग dy x एंड dy z अलोन वी राइट dy x डॉट z एंड dy z डॉट x. और इसी को हम यूज नोटेशन बोलते हैं and they are called partial regression coefficients. So byx dot z को हम बोलेंगे partial regression coefficient of y on x and it is called partial regression coefficient of y on z. So इस तरह से ये नोट हम टू वेरिएबल से थ्री वेरिएबल में एक्सटेंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, राइट. तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है प्लेन ऑफ रिग्रेशन, ये हमने इसी को यूज करके लिखा है. दिस कांस्टेंट a can be eliminated because of this. The sum of deviation from actual mean is always 0. If you take sum on both the sides, you get 0, 0, 0 everywhere. So a equal to 0. So using this concept or this fact that sum of deviations from actual mean is 0, then we get this a equal to 0. So we can eliminate this a and we can write this equation purely as, and this is the plane of regression of x1 on x2 and x3. So look at this notation. ये notation आपको ध्यान रखना है. यहाँ b12.3 and b13.2 इनको बोलते हैं partial regression coefficients. ठीक है, this is called partial regression coefficient of x1 on x2. This is called partial regression coefficient of x1 on x3. Now if you want to extend this up to n variables, so in general for n variables हम इसी को extend कर सकते हैं. अगर यहाँ x1, x2 and x3 की प्लेस पर या x2 and x3 के साथ x4 भी हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर b14.23. फिर यहाँ पर एक और वेरिएबल आ जाएगा. ठीक है, यहाँ 24 भी आएगा, यहाँ पर 34 भी आएगा और यहाँ पर 14.23. तो यहाँ पर आ जाएगा x4 माइनस x4 बार. सो x1 इन टर्म्स ऑफ x2, x3 एंड x4 वी राइट लाइक दिस. सो इन जनरल we write plane of regression of x1 on all other n-1 variables. तो इस तरह से इसको हमने लिखा है. Look at the notation. डॉट के पहले जो भी लिखा है वो प्राइमरी सब्सक्रिप्ट है, डॉट के बाद जो लिखा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट. तो सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट्स में जो भी वेरिएबल्स या जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो. 3, 4, 5 की जगह 4, 3, 5 इस तरह से भी लिख सकते हो. But you cannot change the order in the primary subscripts. Order of primary subscripts are important. उनको आप चेंज नहीं करना.
देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट्स, तो जो डॉट दिखाई दे रहा है उस डॉट के बाद में आने वाले सब्सक्रिप्ट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट्स और पहले आने वाले को बोलते हैं प्राइमरी सब्सक्रिप्ट। ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सब्सक्रिप्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें B12.3 लिखा है इज डिफरेंट फ्रॉम B21.3। सिमिलरली यहाँ B12.345 लिखा है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम B21.345। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है। इसमें सेकंड वेरिएबल जो है x2 वो डिपेंडेंट है, x1 इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल x1 डिपेंडेंट है एंड सेकंड वेरिएबल x2 इंडिपेंडेंट। सो टू फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वी यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अगेन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स यूज करके हम फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास में जैसे प्लेन ऑफ रिग्रेशन है ऑफ x1 ऑन अदर वेरिएबल्स, देन टू फाइंड these coefficients, ये जो कोएफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कोएफिशिएंट आपको चाहिए बिकॉज इसमें x1 x2 बार ये जो भी है मीन ये तो आप फाइंड कर लोगे फ्रॉम द गिवन डाटा, बट ये जो कोएफिशिएंट है ये फाइंड करने के लिए यू यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ x1 माइनस इट्स एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ x1 ऑन अदर वेरिएबल्स, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि इस प्लेन ऑफ रिग्रेशन से आई है। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और इसको स्क्वायर किया और इसका सम बनाया, और सम बनाने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो है उनके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। B12.345 एंड सो ऑन इक्वल टू 0 मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है। तो यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर इसको हम डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे, बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। B13.245 अप टू n इक्वल टू 0, ऐसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो n-1 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि यहाँ n-1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स उनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं तब जाके ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलते हैं। जस्ट लाइक टू वेरिएबल के केस में हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल के केस में बनाते हैं ना एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू xi माइनस b होल स्क्वायर, फिर ये s बनाया हमने और डेल s बाय डेल a इक्वल टू 0 एंड डेल s बाय डेल b इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx एंड bxy। उसी तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे n-1 इक्वेशंस को, टोटल n-1 इक्वेशंस बनेगी। तो वो सब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व देम, बट जो स्टैंडर्ड उनको सॉल्व करने के बाद में जो जनरल फॉर्मूले आते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स द पार्शियल रिग्रेशन coefficients, they are called partial regression coefficients obtained by method of least squares। ये जो फॉर्मूले है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। They are very simple to remember, they are difficult to obtain but they are very easy to remember। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई करने के बाद में जो n-1 इक्वेशंस आती है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद में जो जनरलाइज फार्मूला आता है वो ये आता है। तो B12.345 अप टू n अगर ये फाइंड करना है तो ये इक्वल टू माइनस सभी में आएगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ऑफ सेकंड वेरिएबल, ओमेगा 12 अपॉन ओमेगा 11। ये क्या है मैं अभी बताऊंगा, ओमेगा 12 एंड ओमेगा 11। B13 इस तरह से आएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3, B1n सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा n। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो इन जनरल। B12 है तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 है एंड सिग्मा ओमेगा 12 डिवाइडेड बाय ओमेगा 11। तो ये ओमेगा 11 जो भी है वो इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर है, दिस इज कोफैक्टर ऑफ दिस W। जैसे यहाँ W12 लेंगे तो W12 मींस कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मींस ये, इसमें जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। यू नो हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। और R12 R13 क्या है, ये जो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है बिटवीन 1 एंड 2, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 1 एंड 3 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट रो के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फर्स्ट वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल। तो फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड के साथ में कोरिलेशन, क्योंकि R11 तो हमेशा ही 1 होगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद itself is always 1. Correlation coefficient with second variable, correlation coefficient of x1 with second variable is R12, correlation coefficient of first variable and third variable is R13 and so on. Similarly R12 ये चीज ध्यान रखना है, correlation coefficient between first and second find करो या correlation coefficient between second and 1 find, ये हमेशा सेम होते हैं। correlation coefficients are always same, 1 3 equal to R31 simple correlation coefficient जो हमने पहले फाइंड किए थे 2 वेरिएबल के केस में, ये हमेशा सेम होते हैं। इसीलिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये सिमेट्रिक है, दिस डिटर्मिनेंट इज सिमेट्रिक। डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज है वही एंट्रीज नीचे भी, R23 एंड R32 बोथ आर सेम। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका कोफैक्टर्स है ये W12 W11 W13 W11 एंड सो ऑन। सो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। एक पर्टिकुलर प्लेन के लिए आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसको ऑब्टेन करने के लिए। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आया है आफ्टर सॉल्विंग n-1 इक्वेशन। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है प्लेन ऑफ रिग्रेशन कैसे फाइंड
फाइंड करते हैं, इक्वेशन यहाँ से लेना है, जितने भी वेरिएबल हो उतने वेरिएबल्स यहाँ ले लेना है, एंड दीज आर दी रिग्रेशन पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, हाउ टू फाइंड द प्लेन ऑफ रिग्रेशन, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x2 ऑन x1 एंड x3। x2 की इक्वेशन आपको x1 एंड x3 पर फाइंड करना है, गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स दिए हुए हैं कुछ। सो ये ट्रेट मींस प्रॉपर्टी x1, तो x1 जो भी है वो क्या है, सीड पर एकड़ या अमाउंट ऑफ सीड पर एकड़ है, केजी में हो या वट एवर इट इज। 28.02 इसका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.42 है, और R12 कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सीड पर एकड़ एंड रेनफॉल इन इंचेस। x1 और x2 के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है 0.80। ठीक है, इस तरह से ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x2 ऑन x1 एंड दिस यू हैव टू find. Now can you write the equation, plane of regression or regression equation of x2 on x1 and x3? x2 minus x2 bar equal to b21.3 x1 minus x1 bar plus b31.2 x3 minus x3 bar. चेक कर सकते हो, सॉरी b21 and b23 है, b2 सेकंड वेरिएबल का आपको फाइंड करना है, प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑन अदर वेरिएबल। सो b21.3 x1 minus x1 bar and b23.1 x3 minus x3 bar। ठीक है इक्वेशन। और b21.3 का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 डॉट W21 अपॉन W22 कोफैक्टर, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर है। एंड व्हाट इज B23.1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 3 इंटू W23 अपॉन W22। ये सेम आएगा, डिनोमिनेटर में W22 और W23 कैसा आया, जो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट ऑर्डर दिख रहा है उसी का ऑर्डर का कोफैक्टर है। तो ये आपको B12 एंड B21 फाइंड करना है, और x2 बार, x1 बार, x3 बार दे आर गिवन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 दे आर हियर। सो कैसे फाइंड करेंगे हम सिस्टमेटिकली, तो यहाँ पर हम रेनफॉल इन इंचेस, x2 रेनफॉल इन इंचेस हम फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीड्स पर एकड़ एंड एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर अबव 42 डिग्री। सो रेनफॉल इन टर्म्स ऑफ सीड्स पर एकड़ एंड एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर उसकी टर्म में फाइंड कर रहे हैं। सो ये वाला तो हो गया आपका प्लेन ऑफ रिग्रेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, B21 पॉइंट B23.1 इस तरह से फाइंड होगा ये। एंड W, देखो W किस तरह से फाइंड करेंगे हम, 1 R12 R13, फिर ये वाला R12 और R21 सेम होते हैं इसलिए दोनों सेम होंगे, R13 एंड R31 दोनों सेम है इसलिए हमने इसको सेम लिखेंगे, एंड R23 एंड R32 बोथ आर सेम। तो R12 की वैल्यू कितनी है, 0.80, तो सेम वैल्यू R21 की भी होगी। R13 की वैल्यू -0.40, तो R31 की वैल्यू भी -0.40। R23 की वैल्यू कितनी है, -0.56, तो R32 की वैल्यू भी -0.5, और डायगोनल पे 1 आएगा हमेशा। R11, R22, R33 हमेशा 1 होंगे। तो ये हो गया W, ये हो गया आपके पास में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, W21 क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना है 0.80 का। तो इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है, तो W21 की वैल्यू ये आ गई, W23 की वैल्यू कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम -0.56, और लास्ट वाला W22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर 1 -0.40 1। नाउ सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग हियर, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, B21.3। सिग्मा 2 की वैल्यू दी हुई है 1.10, सिग्मा 1 की वैल्यू है 4.42, ये माइनस साइन ऑलरेडी था, और W21 की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही थी -0.57, और W22 की वैल्यू 0.84। तो व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दीज, इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.171। सो B21.3 इज 0.171, सिमिलरली B23.1 इज -0.004। तो ये आप चेक कर सकते हो, W23 डिवाइडेड बाय W22। नाउ व्हाट इज द प्लेन ऑफ रिग्रेशन, मीन आपको दिया हुआ x2 बार, x2 माइनस x2 बार इक्वल टू दिस इज B21.3, x1 माइनस x1 बार मीन्स x1 माइनस मीन ऑफ x1 माइनस B23.1 x3 माइनस मीन ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देन यू विल गेट दिस। So this is the plane of regression of x2 on other variables x1 and x, or x2 is a function of x1 and x3। तो ये जो इक्वेशन आई है, this equation will give values of x2 in terms of x1 and x3। Now second example देखो, ये भी उसी तरह का है, in a study of a random sample of 120 students the following results are obtained। ये obtained किया रिजल्ट, इसके लिए क्या फाइंड करना है आपको, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में आपको फाइंड करना है। तो प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, प्लेन ऑफ रिग्रेशन या जो भी इक्वेशन है वो लिख लो आप, उसके बाद में फार्मूला 3-1 है तो सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1, W31 अपॉन W33, B32 है तो सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 2,
W32 अपॉन W33 एंड W इज दिस, यू नो, तीनों चीजें फाइंड कर सकते हो, 4 वेक्टर्स W31, W32, W33। देन सिंपल इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, B31.2 एंड B32.1 की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। सिग्मा 3 सिग्मा 1 दे आर गिवन, W31 W33 अभी फाइंड किया हमने। So 0.4359 is the value of regression coefficient of x3 on x1, partial regression coefficient of x3 on x1. Similarly, partial regression coefficient of x3 on x2 is 0.6469. Substitute and find. So this is marks in the final exam as a function of marks in the two tests, x1 and x2. तो परसेंटेज वो भी परसेंटेज में दिए थे, 68% है ये, तो 60 x1 इक्वल टू 60 एंड x2 इक्वल टू 67, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आप फाइंड कर लो। सो उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल एग्जाम में इतने आने चाहिए, एस्टिमेटेड है ये 68.572 उसके मार्क्स होने चाहिए फाइनल एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टेस्ट, क्योंकि ये मार्क्स। तो दिस इज अबाउट द प्लेन ऑफ रिग्रेशन। तो इसमें हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस में सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद में कोरिलेशन डिस्कस करते हैं, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। जबकि 2 वेरिएबल वाले केस में हमने पहले कोरिलेशन फाइंड किया था और बाद में रिग्रेशन फाइंड किया, लेकिन मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम उल्टा चलते हैं, पहले हम लेते हैं प्लेन ऑफ रिग्रेशन और उसके बाद में फाइंड करते हैं मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो अभी हमने जब सिंपल कोरिलेशन डिस्कस किया था, कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली, तो उसको हमने बोला सिंपल कोरिलेशन। बट यहाँ पर अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 टाइप के कोरिलेशन हम स्टडी करेंगे, एक है मल्टीपल कोरिलेशन और दूसरा है पार्शियल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस, अभी हो नहीं पाएगा। तो अभी के लिए आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस में लर्न टू फाइंड प्लेन ऑफ रिग्रेशन। तो प्लेन ऑफ रिग्रेशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो आपको आना चाहिए। और प्लेन ऑफ रिग्रेशन का इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर है, इसी को हम अगर इंटरप्रिटेशन दें तो ये क्या है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जाम एज ए फंक्शन ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट। और इसको हम यही बोल सकते हैं एस्टिमेट ऑफ x3 इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। ये जस्ट एस्टिमेट है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ रिग्रेशन जो होता है वो किसी भी एक वेरिएबल का एस्टिमेट देता है इन टर्म्स ऑफ द अदर, और इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि जॉइंट इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दैट वेरिएबल, जिसका हम प्लेन ऑफ रिग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है x3 एज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं जॉइंट इफेक्ट ऑफ x1 एंड x2 ऑन x3। तो आगे हम एक चीज और यूज करेंगे, जॉइंट इफेक्ट, ये आगे पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में यूज करेंगे, जॉइंट इफेक्ट ऑफ x1 एंड x2 ऑन x3। इसी को हम इस तरह से भी बोलते हैं। तो जॉइंट इफेक्ट का मतलब है दोनों का एक साथ क्या इफेक्ट है x3 पर, वो हमने मेजर किया है इस प्लेन ऑफ रिग्रेशन से।